तो हमारे सेकंड स्पेशल गेस्ट भी चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको अमर चौहान मैम से, जो कि एमडी है इन्फोबग के और जर्नलिस्ट भी है, ऑथर भी है। तालियां बजनी चाहिए। और हमारे थर्ड चीफ गेस्ट आ चुके हैं सिद्धार्थ सर, जो हमारे बीच में है, और इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ अलग अलग टैलेंट अलग अलग जगह से आ चुका है, और हमारे बीच में जो अगले कंटेस्टेंट हैं वो है सुरभि मैम, जो कि प्रोफेशनली मेकअप से जुड़े हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये भी कुछ चीजें आपके साथ साझा करेंगे, जो मेरे लिए तो नहीं बट किसी के लिए फायदेमंद जरूर होंगी। Welcome to the event first of all, and thank you for letting your precious time out, you all listeners. So I'm a professional makeup artist from Mumbai, working here in my hometown. Today I'm here to talk about my work. So how I work is, I have seen a lot of makeup artists nowadays on Instagram. They put about makeup transformation, and जितने भी लड़के इधर बैठे हैं do talk कि अरे यार दिखती ऐसी थी, मेकअप के बाद ऐसी दिख रही है। But to be honest, as an artist, there's nothing like transformation. We as an artist have the work to enhance all the beautiful girls out there, not to transform them, first of all. Secondly, for me, according to my makeup, skin should look like skin, not makeup. My makeup mantra is less is always more. You don't have to put tons and tons of makeup on your face to look good. If you put tons and tons of makeup, it will eventually end up in looking very, very cakey. So guys, don't put lots of foundation, concealers. Just remember, less is always more. And I have seen here that many people they make their brides two-tone whiter. This is not how you do makeup, especially I don't do makeup like that. Dusky skin should look dusky, fair person should look fair. Close-set eyes should look big, big eyes should look wider. This is how we do makeup. If you make a dusky person look two-tone whiter or whiter person darker, that's not makeup. Putting a lot of blush on your faces, like too much blush, is a big no-no from my side. It should look like that the girl is flushing from within with that blush. So this is how I do makeup. I'm a professional makeup artist, and I've been certified by the topmost celebrity makeup artist from Bombay. Working here, I've started my work here. If you like my speech, guys, go give some love on Instagram. And my makeup ID is Makeup by Surbhi. Hope you like it. See you all guys soon for the makeup girls. Bye. जाते जाते मैंने कुछ बोल दिया था, मुझे याद कि कुछ टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, मेरे लिए नहीं। पर याद आया, मेरी तो शादी नहीं है, मेरे को भी चाहिए भाई। तो सभी मैडम, मेरे को भी आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है? 6 महीने बन गई हो तो फिर मैं आना पड़ा मेरे को भी। तो अभी हमारे साथ सबसे छोटे हमारे जो कंटेस्टेंट हैं दृष्टि, तो मैं इनको स्टेज पे बुलाता हूँ, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Hello everyone, my name is Drishti Gupta. I'm 7 years old. I'm a student of KC Public School and I live in Jammu City. First of all, I want to thank the organizers of this event for inviting me and making me a part of this event, Rabta. It is indeed a proud moment to be in front of you all at such a young age. It was March 2021 when my mom made my Instagram account, and now with all of your love, I have a family of 7K plus followers now. In the end, I want to say that support your children and or younger brother or sister for everything like my parents did. और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं, फिर क्यों घोटी जाती हूँ हर रोज मैं। अब इस घुटन
दृष्टि जी, आप कौन सी क्लास में हो? सेकंड। सेकंड। वाह यार, मैं फैन हो गया इनका, क्योंकि हम अपने टाइम पे तो क्या बोलूं, कुछ आता ही नहीं था। बट नहीं, आज के बच्चे को हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो गुड लक डियर, ठीक है? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿਕੜੂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? इतने फ्रेश लग रहे हो आप लोग। आप लोग संतूर से नहाते हो क्या? हम लोग लाइव बाय वाले हैं। सेम। अभी यहाँ पे ना एक खूबसूरत महिला एंकरिंग करने वाली थी, लेकिन फिर उसने मुझे देखा, ये भी परफॉर्म करेगा, ठीक। तब जैसे तैसे इनको मनाया गया। ये बोले जब हम कोविड में काम कर सकते हैं तो ये क्या, इसके साथ भी कर लेंगे। अभी कुछ दिन कोविड के केसेस बढ़ गए थे तो ये प्रोग्राम बंद हो गया। अभी केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मास्क पहनना फिर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क हमें बचाता है। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त बंटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में गया था, सामने से उसकी बीवी गुजर गई। नहीं पहचान भाई, मास्क ने बचा दिया। स्कूल में ना मुझे गाने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। एक बार मुझे याद है, स्कूल में मुझे एक गाने के लिए 2 मेडल मिले थे, एक छोटा दूसरा बड़ा। छोटा गाना शुरू करने के लिए मिला था। थैंक यू। तालियां बजाते हुए तो मजा आता है। अभी वैलेंटाइन डे बीता है ना, तो मेरा दोस्त बंटी फूल लेके, फ्लावर लेके वो गर्लफ्रेंड से मिलने गया पार्क में। वहां गया तो देखा है कि गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के के साथ बैठी है। फिर उसके दिमाग में आया कि तेरा इश्क भी मेरे गांव के चुनाव जैसा निकला, तेरा इश्क भी मेरे गांव के चुनाव जैसा निकला। रुझान तो मेरी तरफ था, परिणाम किसी और का निकला। और बेचारा गम में। और हमारे इंडियन जो भी लोग है ना, जो भी लवर है ना, बस दिल टूटा और दारू पीने लग गया। वो बेचारा जाके बहुत सारा पिया और नशे में आ गया। शाम को घर जाने उसको पता ही नहीं चल रहा किधर जा रहा है। एक ऑटो वाले को बोल रहा है कि भाई साहब, ऑटो वाले बोले कि कहाँ जाना है भाई? तो बोला कि कम। वही बोला कि चलो बैठ जाओ, जहाँ जाना है। पूरे नशे में है। वो इतने नशे में था कि ऑटो में इधर से बैठा और इधर से उतर गया और गिर के झाड़ते हुए बोलता है, कितने पैसे हुए? थैंक यू। मैं सोचता हूँ ना कि पहले भी जो राजा महाराजा थे ना, उनका जो ड्रेसअप था, उनका ना अजीब टाइप का ड्रेसअप था। इतने सारे ना ड्रेस नीचे, फिर वो चारों तरफ चला हुआ है। उसके पीछे फिर एक और वो पर्दा लगाते थे जो नीचे तक चलता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि राजा जी अपने बगीचे में टहल रहे हैं उस बड़े से गांव के साथ, मंत्री सेनापति सब टहल रहे हैं, और वो ना कपड़ा ना पीछे से गमले में फंस गया। वो बोलता है कि मंत्री सेनापति देखो, हमला हुआ है, हमला। पीछे से मंत्री बोला, हमला नहीं महाराज, गमला। आपके बस गमले में फंसे हैं। बोला नहीं, किसी ने मुझे पकड़ रखा है। नहीं महाराज, आपको गमले ने चक्कर रखा है। पिछले दिनों ना मैं ना दिवाली में अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, मैं एक्चुअली मैं बताता नहीं हूँ तो लोग अट्रैक्शन बना रहता है, लेकिन बनाना पड़ता है कभी कभी। तो पिछले दिवाली में हम लोग घर की सफाई कर रहे थे। तो सफाई करते करते ना हमें एक दवा की पर्ची मिली, पैरासीटामोल, जो अगले 10 दिन में एक्सपायर होने वाली थी। और हम लोग हैं मिडिल क्लास सर जी, हम लोग मिडिल क्लास है। तो पैरासीटामोल मिली ना, तो हम लोग सोचे इसको क्यों नहीं यूज कर देगा, अगले 10 दिन में एक्सपायर हो ही जाएगी। तो मैंने बीवी को मनाया कि तू ही खा ले। उसने कहा ठीक है, इस बार तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन जो अगला सामान मिलेगा वो आप खाना। तो थोड़ी देर बाद मिली हम लोग को चूहे मारने वाली दवा।
वो भी एक्सपायर। मैंने कहा ये तो एक्सपायर हो चुकी है। वाइफ ने बोला यही तो इस दवा की खासियत है, एक्सपायर के बाद भी काम करती है। आपने पेपर वेट देखा होगा ना, पेपर वेट टूटने के बाद भी काम करती है। अब तो दो पेपर वेट हो जाता है। गजब का लॉजिक है। इसी तरह चला जा रहा था। मैंने देखा ना कि छोटा सा मैंने ऑब्जर्व किया है सर कि सुख दुख हंसी खुशी कुछ नहीं है, ये सब हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। हम जैसा सोचते हैं उससे खुश होते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और लाइट चली गई, आपको बिजली डिपार्टमेंट में गुस्सा आता है, लेकिन आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लाइट चली गई, आप खुश हो जाते हो। आप वाह कोलकाता में खाना खाने आए हो और बिल ज्यादा हो गया और साथ में आपकी अपनी बीवी है, और सोचो गुस्सा आता है, लेकिन सोचो साथ में दूसरे की बीवी है, आपको गुस्सा नहीं आता। कहता बड़ा अजीब ये शख्स है, बड़ा अजीब ये शख्स है, पत्नी पे मरता है, उस पर से और कमाल देखो अपनी पे मरता है। अच्छा, और कोलकाता में आपने वाव कोलकाता में खाना आप खाए, बाहर निकले, टैक्सी ऑटो के लिए आधे घंटे तक नहीं मिली, साथ में अपनी बीवी है और साथ में दूसरे की बीवी है। सोचो आप, दुनिया में जो भी बच्चे पैदा होते हैं ना, हेलो मैम, कहानी वाले, हेलो कैसे हो आप लोग, बढ़िया। दुनिया में जो भी बच्चे पैदा लेते हैं ना मैडम, सब जन्म लेते वक्त रोते हैं, लेकिन सोचो एक बच्चा ने जन्म लिया और उसको मालूम चले दूसरे ही पल उसने अंबानी के घर में पैदा लिया है, हंसना शुरू कर देता है। तीसरे बार पता चलता है कि ये वाला वो अंबानी नहीं है, इसका सिर्फ सरनेम अंबानी है। बच्चा उसी समय बोलने लगता है अंबानी मिडिल क्लास का टाइटल नहीं है, तुम लोग का हक ही नहीं है अंबानी टाइटल रखने का। फिर से रोने लगता है। आप ना किसी खास से मिलने जाना हो आपको और जाने से पहले बारिश हो रही है, बारिश में गुस्सा आएगा, लेकिन सोचो आप जिससे मिलने जा रहे उससे मिल लिए हो, अब आप वापस आ रहे हो तब बारिश शुरू हो जाए, स्टेट ऑफ माइंड, उस समय खुश हो जाओगे। इसी पर किसी ने लिखा है कि ए अहले चमन जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, और ए अहले चमन जरा जम के बरस कि वो जा न सके। अब एक छोटा सा और मेरी स्टोरी है मेरे पास, कुछ लोगों को पता है, मैं फिर से बताता हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने बताया कि इसको स्टूल टेस्ट करना पड़ेगा। स्टूल टेस्ट होता है ना, 3 लोगों को पता है, अच्छा होता है, मतलब बच्चों का स्टूल टेस्ट होता है। तो मैंने कहा कि अब उसको ना कैसे ले जाए, हम हाथ में ले जाते हैं, है ना, तो मैंने कहा कि पूरा डायपर ही दे दो। तो डायपर को हमने ना एक अच्छे से प्लास्टिक में दे दो। तो वाइफ सर्च की ना, तो उसके ज्वेलरी वाला प्रचार लग गया, समथिंग ज्वेलरी वाले प्लास्टिक में मैंने रखा है डायपर। और मैं स्टेशन गया, मेरा घर ना गांव में है, मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना था। जो मैं रेलवे स्टेशन में गया ना, तो मैं उसको बार बार देख रहा था। और रेलवे स्टेशन में भाई साहब, अगर आप बार बार किसी चीज को देखो तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सामान है। जो ही मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, एक आदमी आया और लेके भाग गया। और मेरे को टेंशन कि वो टेस्ट होने के लिए जाना था। अच्छा, टेस्ट होने के लिए अभी भी वो जा रहा है, ये अलग बात है क्योंकि स्पेलिंग अलग है। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा भाई साहब, तो मुझे पता चला कि वो चोर जो है ना, रेल की पटरियों पे भागा जा रहा है। अच्छा, उसको ये थोड़ी सी स्मेल आ रही है, लेकिन वो कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि वो रेल की पटरियों पे भाग रहा है। और मैंने देखा वहां जाके कि चोर की एक गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है, और उसने वादा किया था कि आज की पहली कमाई तेरे नाम करूंगा। वो जाके वहां पहुंचता है, बोलता मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, दौड़ते दौड़ते एकदम सांस उसकी चल रही है। मैं भी थोड़ी कैरेक्टर में आ जाता हूं, मेरा क्या, मेरा तो थोड़ी देर में सांस चल जाता है, पर्सनालिटी ऐसी। वो जाके बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। अब गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड होती है भाई साहब, चाहे चोर की हो चाहे हमारी हो, बैंकर की हो, है ना।
उसके नखरे अलग होते हैं। वो बोला ऐसे नहीं, घुटनों पे बैठ के शाहरुख खान के स्टाइल में, और बेचारा शाहरुख खान के स्टाइल में प्रपोज करता है कि जब तक है जान, जब तक है जान, ये तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, कृपया इसको ले लो। वो लड़की लेती है, देखती है और उस डायपर को ऐसे चेहरे पे रगड़ती है जैसे हम बर्थडे में केक रगड़ते हैं। एक छोटा सा है, बस मैं कह के जाऊंगा कि वाह कलकत्ता, इतना मैंने ऐड किया है, मेरी फीस बढ़ा देना भाई साहब। कितना ऐड कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है कलकत्ता का, बंगाली, तो वो मेरे को ना बांग्ला सिखा रहा था। बोला बांग्ला में भालो मीन्स गुड, खूब भालो बेटर, दारून बेस्ट। मैंने बोला दारू हमारे यहाँ भी बेस्ट होता है। थैंक यू, दैट्स माय टाइम। मैं छोटा सा चैनल भी चलाता हूँ, वीर मीता कॉमेडी शो यूट्यूब पे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, बुरा लगे तो शेयर कर दे। थैंक यू।